Pal, who's a renowned psychiatrist with special focus on child and adolescent problems. He's also a member of various committees for protection and promotion of mental health of children and adolescents and is involved in health policy making. Let's hear from him in his own style, his introduction and a welcome for you all. Thank you, Divyaji. What a pleasure to be here in this program once again. Let me tell you that a very modest effort has been on my part. मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों के मनोविज्ञान से, किशोरों के मनोविज्ञान से, अभिभावकों के रोज़ाना के अपने जो ट्रेंड्स हैं उनको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं और जीवन कौशल शिक्षा यानी कि लाइफ स्किल्स एजुकेशन हैज़ बीन अ बिग effort on part of the government of India also. And when we come to the examination, are we not talking about the life skills? Are we not talking about the positive mental health? So these are the areas we have all been working, and I'm thankful to the government of India, the NCPCR, for taking such a wonderful step forward. And we are also greatly honored by the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, for coming out with such wonderful ideas and interactions with the young students of India, always supporting them, encouraging them and inspiring them. So you have also been involved with an NGO called Director of Expressions India, right? Yeah. Which coordinates and training and consultation of school-based mental health programs. इसके बारे में थोड़ा हमें बताएंगे? स्कूल मेंटल हेल्थ एक जो विषय है ये अब जाके बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चैलेंज हो रहा है बिकॉज हमारे देश के आंकड़े बताते हैं यू नो दी ओवरऑल डेटा इन आवर कंट्री मेंशंस दैट अबाउट 10 to 15% of our children they suffer from mental health conditions which are moderate to serious also, like depression, anxiety, psychosomatic problems, obsessive compulsive disorders, and so many others like panic attacks, and also leading to major mental health disorders like psychosis, schizophrenias, bipolar mood disorders, and of course not to forget drug abuse. So it's our duty, our responsibility as a nation that we need to take care of the mental health of our young people in schools. What do? We need to identify. Divyaji, it's very important to have the teachers trained to, you know, identify those flag signs, and it'll help them to not only identify but also get the right intervention at the right time for the right group of people. Because science tells us, the research tells us now, nearly 50 to 60% of many mental health disorders actually start during childhood. Yeah. And if you don't identify them, the whole challenge about education will become about mental health conditions. The challenge would be to remarkably come forward to identify who need the help of a counselor, who need the help of a parent to interact with the school. You know, the school family partnership, it's something very importantly emerging as a new dimension school. अब आप देखिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020, दैट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द सोशल इमोशनल लर्निंग्स इन स्कूल, and it is well articulating the fact that we all need to strive to create a holistic education. The purpose of education, dear children, is also to develop the personality. We are not going to school only for academic achievement. We are not going to school only for getting marks. You're going to overall develop as a human being and be happy. The most important factor is to be happy in a school, happy in the family, and happy as a citizen of the country, isn't it? So when I walk to the school, when the child walks into the school, the first and foremost important part should be the feeling of safety, feeling of security, and the feeling of happiness. So mental health safety is a new dimension that is coming in as an important effort by the school, the principals, the teachers, and of course the counselors. So let us all celebrate education. The idea is to celebrate. एक education को, शिक्षा प्रणाली को हमें एक जश्न मनाना है, उसके साथ जुड़कर हमें नए आइडियाज़ लाने हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं. कहते हैं कि खुशी तब मिलती है जब ज़्यादा हम औरों की खुशी का सोचते हैं. And let's think of the happiness of the child sitting next to me. I'm sure he'll also think about me. And the teacher looks at so many teachers in the classroom. There are 40 teachers and one learner. When you talk about emotions, सब बच्चे अध्यापक हैं और सब टीचर्स हमारे छात्र हैं, because we are all learning together, we are growing together, we are developing together, we are making a remarkable effort to bring about a change in our emotional value. That is education.
the urge to grow, develop, to make a difference to the life of oneself and the other people. And that is what the exam warriors are all about. Today the exam warrior is not about appearing for an exam, the board exam. The exam warrior is about taking up the challenges in life. जो चुनौतियां हैं ज़िंदगी की, आज कोविड-19 की चुनौती है, आज परीक्षा की चुनौती है, आज हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कॉलेज की चुनौती है, करियर की चुनौती है, सक्सेस, फेम, फैमिली, मैरिज, सब चुनौतियां सामने आती हैं. उसके साथ जूझना है, झेलना है, संघर्ष करना है और हमें जीवन कौशल को आगे लाना है, यानी कि लाइफ स्किल्स एजुकेशन. सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर आवर कंट्री टू कम टुगेदर. We have more than, for example, adolescents. Nearly 30 crores of our young people are adolescents. The citizens of India, 30 crores approximately are adolescents. किशोर अवस्था, 10 से 19 साल का जो एक टाइम पीरियड है लाइफ का, कितना परिवर्तन होता है. Very crucial. Isn't it, ma'am? हाँ. Yeah. तो आपने सही कहा कि परीक्षा को हम पर्व की तरह मनाते हैं. दैट्स व्हाट दिस होल प्रोग्राम फॉर अराउंड 1.5 month इज अबाउट. आप ये बताइए कि आपने बोला कि इसको टाइम पे जानना बहुत ज़रूरी है, तो कैन यू हेल्प आवर टीचर्स स्पेशली और पेरेंट्स कि कैसे रिकग्नाइज करें कि बच्चे में कोई तकलीफ है या कोई परेशानी है. बहुत बेहतरीन सवाल है दिव्या जी. इनफैक्ट एक बदलते हुए समाज में, बदलती हुई शिक्षा प्रणाली में एक जो सिस्टम बदल रहा है, हमारे यहाँ हमारे जो अध्यापक हैं ये भी हमारे एजुकेशन वॉरियर्स रहे हैं. कोविड-19 में हमारे टीचर्स ने कम से कम नहीं तो 260 मिलियन बच्चों तक एक शिक्षा का संविधान पहुंचाया है. वी सैल्यूट आवर टीचर्स. एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थॉट ऑफ ब्रिंगिंग इन mental health as an important component of child education, of child development. Now when the teacher is in the forefront of identifying children who need help for their emotions, जैसा आपने ठीक कहा, फ्लैग साइंस, वो फ्लैग साइंस कौन से होते हैं? रोज़ाना की ज़िंदगी में, डेली लाइफ we all go through feelings of high, low, anxiety, palpitation, sometimes even restlessness, जिसको हम कहते हैं घबराहट, बेचैनी, उदासी. they are all part of our daily living, along with happiness, joy, celebration, ecstasy. But what happens? Sometimes the challenges, the peer pressure, the peer conflict with parents, little bit of a part of a growing up. You know, the adolescent is growing, physical changes, psychological demands, relationship with friends, isn't it? I'm sure you also went through that, Divya ji. Yes, we all remember. Wish we had something like Pariksha Parv at that Absolutely. time to help us. You know? Very right. So those changes which happen, जिसको हम कहते हैं परिवर्तन के साथ जूझना. The challenge is now, because we have the social media, we have so much of access to the cyber world, to come across somebody who can guide me. Teacher is my first aid counselor. मैं कहता हूँ टीचर हमारे फर्स्ट एड काउंसलर हैं, जो हमारे मन की बात को, हमारे परीक्षा पर्व को बड़े क्लोजली समझ सकते हैं, हमारी फीलिंग्स को, हमारी इमोशंस को. बच्चे के साथ एक टर्बुलेंट फीलिंग्स होती हैं, चेंजेस आते हैं, उसके साथ उनके चैलेंजेस को कई बार मीट करने के, कई बार उनको फेस करने के लिए दुख होता है और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, नींद नहीं आती है. आई थिंक सुनना बहुत ज़रूरी है. व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज़ टीचर की जो लिसनिंग स्किल होती है, कंपैशन जो होता है, यानी कि संवेदना जो होती है. इफ़ यू आस्क मी, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ अ ग्रेट टीचर. लिसनिंग स्किल्स, द एबिलिटी टू हैव द पेशेंस टू लिसन, द एबिलिटी टू हैव कंपैशन, संवेदना, विनम्रता जो होती है बच्चे के लिए. एक क्लास में 30 या 35 बच्चे भी क्यों ना हो, लेकिन सबको अपनी नज़र से देखना, सबको एक इक्वल इमोशन से समझना, मुझे लगता है सबसे बड़ा सब्जेक्ट है ये. ना केवल मैथ्स हो, जोग्राफी हो, लैंग्वेज हो, हिस्ट्री हो. मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इमोशनल कनेक्टिविटी विद द चाइल्ड. आई एम श्योर यू ऑल विल एग्री. इमोशनल कनेक्टिविटी, इमोशनल responsibility, and also understanding that somewhere in the life, day to day hustle bustle, the child goes through so many challenges at home. Sometimes there might be a little difficult situation at home. अब कोविड-19 में दिव्या जी हमने देखा कि परिवार इतना डरा हुआ है,
एक परिवार इतना सहमा हुआ है, कौन सा कब किसको क्या इन्फेक्शन हो जाए, कैसे हो जाए, तो बच्चों ने वो सब देखा है। वो 2 साल जो बच्चों ने एक तजुर्बा प्राप्त किया है, उनका कई बार मैं सोचता हूँ कि उनका बचपन पीछे रह गया। और घर में थे वो, घर में स्कूल का माहौल पूरा चला गया। एब्सोल्युटली। तो आप देखिए, बच्चों का बचपन जब थोड़ा सा छीन लिया जाता है या वो समय से पीछे हो जाता है, हमारा सबका फ़र्ज़ है, अध्यापकों का, डॉक्टर्स का, काउंसलर्स का, माँ बाप का, ग्रैंड पेरेंट्स का और सबका, टीचर्स का भी, यानी कि स्कूल में हर टीचर का। मैं तो कहता हूँ कि एक लाइब्रेरियन है, एक गेम्स टीचर हैं, लेबोरेटरी में जो लोग हमारी सहायता करते हैं, बस कंडक्टर, बस ड्राइवर हैं, स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड हैं, सब हमारे आदर्शवादी सहपाठी हैं। सबको हमको साथ को लेकर चलना है और बच्चों की खुशी को सबसे प्रथम रखना है। तो हैप्पी चाइल्ड इज़ अ हैप्पी नेशन एंड अ हेल्दी चाइल्ड इज़ हेल्दी इंडिया। आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट एंड दैट इज़ वाई परीक्षा पर्व इज़ वन ऑफ द स्टेप्स। ये केवल एक कदम है, एक सीढ़ी है, एक लंबे रास्ते का, एक लंबी रफ्तार का एक छोटा सा कदम है। आइए इसको सेलिब्रेट करते हैं। और जैसे कि सर आपने इमोशनल एस्पेक्ट की बात की, जी। जैसे कि IQ इम्पोर्टेंट है, वैसे टीचर्स का, पेरेंट्स का EQ, इमोशनल क्वेश्चन, बहुत बड़ी बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर एज अ स्टूडेंट हाउ शुड यू डील विद द स्टिग्मा अटैच्ड विद मेंटल हेल्थ? जैसे बच्चों में ना टीजिंग बहुत होती है, मेंटल लेके या पागल वर्ड को लेके, या मतलब साइकियाट्रिस्ट के पास जाने को लोग अलग तरीके से लेते हैं इंडिया में, और बच्चों में ये टीजिंग ज़्यादा होती है। तो ये जो स्टिग्मा अटैच्ड होता है, इसको कैसे डील करेंगे बच्चे? बहुत बेहतरीन सवाल है और बड़ा अप्रोप्रिएट है, बिकॉज एक बहुत ही गहरे बदलाव का युग चल रहा है। ये रीओपनिंग हो चुकी है हमारे देश में, तमाम बच्चे कोशिश कर रहे हैं स्कूल्स के साथ दोबारा एडजस्ट करने की। कई दोस्त जो 2 साल फेस टू फेस नहीं मिल पाए, दोबारा मुलाकात हो रही है। एक चीज़ जो हम अक्सर देख रहे हैं, बच्चे चाहते हैं कि उनकी दबी हुई मन की बातें, उनके जज्बात जो 2 साल पूरी तरह से खिल के, खासकर किशोरों के लिए, जो एक ग्रुप में, एक गैंग में, एक अपने साथियों के साथ जो बातचीत होती थी, गॉसिप होती थी, और कहीं ना कहीं उनको लगता था कि कुछ चीज़ें हमें शेयर करनी है एक छोटे से परिवार में। कौन सा परिवार? मेरे क्लास में मेरा गैंग जो है, उनको एक मौका मिल रहा है और ये प्रोत्साहित किया जाए। देखिए, खेल के मैदान जो हैं, म्यूज़िक रूम जो है, एक्टिविटी रूम जो है, स्कूल के ऑडिटोरियम है, कई बार हम ये देखते हैं कि कई स्कूल देश भर में इन कंप्लीट ऐसे वातावरण का उपयोग कर रहे हैं। केवल क्लासरूम में शिक्षा नहीं होती है, क्लासरूम में ही केवल जो प्रदान करने का जो एक सिलेबस होता है वो नहीं होता है। हमें एंटायर स्कूल के कैंपस को सेलिब्रेट करना है। एक फीलिंग जो होती है, बच्चा कई बार सहम जाता है, जैसा आपने बताया, वो फ्लैग साइंस जो होते हैं कि थोड़ी मायूसी जो दिनों तक चल रही है, थोड़ी खामोशी है, वो स्कूल घर से निकल के वापस आया है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप जो हो रही है, कई बार बच्चे सहम गए हैं, वो समझौता नहीं कर पा रहे हैं, रिकनसाइल नहीं कर पा रहे हैं। मेरा ये सोच है, हम सब का, मनोवैज्ञानिकों का सोच है कि स्कूल ने एक वो ऐसा वातावरण पैदा करना है ताकि बच्चा सबसे पहले कंफर्टेबल महसूस करे। उसको ये ना लगे कि मैं यहाँ पे नया हूँ, कोई नई बिल्डिंग है, नया क्लासरूम है, आओ ये तुम्हारा ही परिवार है, वी आर अ फैमिली, वसुदेव कुटुंबकम कहावत है, द एंटायर वर्ल्ड इज अ फैमिली, सो वी आर सेलिब्रेटिंग द वर्ल्ड एज अ फैमिली, कम डाउन, वी शेयर, वी सिंग टुगेदर, वी लाफ टुगेदर, we have fun together. I think that in the auditorium, in the games field, in the corridors of the school, एक हसल बसल जो होती थी, मुझे याद है कि रिसर्च के टाइम पे जब एकदम शोर शराबा होता था, वही हमें याद है आज। और वो कितना एक हमारे व्यक्तित्व के लिए प्रोत्साहित कारण बन गया। आज भी जब दोस्तों से मिलते हैं तो वो जो थोड़ा बहुत जो शोर होता था, आज ही गूंजता है, और वो खुशियों की जो गूंज है वो बच्चों के दिलो दिमाग में हमेशा रहती है। सो लेट अस सेलिब्रेट दैट, because it's important that we prepare for the exam because we are comfortable with our emotions and we are comfortable with the people around, the situation around. Books and examination, they will always be there. You will be going to the higher education, आप कॉलेज जाएंगे, आप कई विश्वविद्यालयों में जाएंगे, अब्रॉड जाएंगे, किताबें साथ देती हैं क्योंकि किताबें हमारा ज्ञान है, ज्ञान कोश है। बट हम अपने दिल दिमाग का साथ दें, औरों के साथ मिल के, हमारे अपनों के साथ मिलकर, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक मन की बात जो होती है उसको पीछे ना रखें। द डीबंकिंग ऑफ इमोशंस, शेयरिंग ऑफ योर डिफ़िकल्ट इमोशंस इज़ द फर्स्ट फ्लैग साइन दैट यू आर
pressing something which you are not able to share. Unable to open up. यस वो चीज़ मेरे को लगता है टीचर अगर पहचान ले अपने नज़रों से, अपने दिल से, एक बार बच्चे की संकट को संभाल लें, मुझे लगता है कि वो बच्चा कभी भी मानसिक रूप से बीमार नहीं हो सकता है. बिकॉज कैमरेडरी जो होती है, एक दोस्ती जो होती है अपने आप से, वो वापस मिल जाती है. क्योंकि कई बार जब हम हताश होते हैं, निराश होते हैं, या हम बेबस हो जाते हैं, कई बार हम भविष्य के बारे में सोचकर हताश हो जाते हैं, करियर का क्या होगा, एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आएंगे. वो जो सहारा होता है टीचर का, भाई बहन का, माँ बाप का, कि हम तुम्हारे साथ हैं, एक कदम है. परीक्षा लिखो, एग्जामिनेशन हॉल में सेलिब्रेशन करो, जो मन से आता है लिखो, और फिर हम आगे छुट्टियां मनाते हैं. ये जो एक प्रोत्साहित करने का तरीका है, मुझे लगता है टीचर्स पहचान लें तो बहुत ही खूब है. बच्चों की परीक्षा में कोई भी तनाव आएगा नहीं. आपने जो कहा करियर रिलेटेड, जो उनको कभी सहमे हुए रहते हैं, शायद ओपन अप नहीं कर पाते हैं. जी बिल्कुल. तो अमृतांशु फ्रॉम चंडीगढ़ हैज अ कनेक्टेड क्वेश्चन टू दैट. ही इज आस्किंग हाउ टू कन्विंस पेरेंट्स टू सिलेक्ट करियर ऑफ आवर पाथ आफ्टर क्लास 12th. क्योंकि यूजुअली होता है कि पेरेंट्स ने एक प्लान बना रखा होता है बच्चों के लिए, तो उनको कैसे कन्विंस करें कि हमारा जो पाथ है हमने अलग चुना हुआ है. थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल है. और शायद आपका सवाल हिंदुस्तान के लाखों बच्चों का सवाल है. करियर कैसे चुनना. सबसे पहले तो इसके ऊपर अपने फैमिली में, स्कूल में विवाद होना चाहिए. वर्चुअल तरीके से हो या फेस टू फेस हो, क्योंकि करियर के बारे में चर्चा, आप तो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सब लोग, लेकिन करियर की चर्चा 7वीं 8वीं क्लास से शुरू हो जाती है. कई स्कूलों में होती है देश भर में, और बड़ा अच्छा रहता है. मैं कह रहा हूँ कि चर्चा शुरू होती है, आपको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है तब. बट द फैक्ट दैट एक सागर है हमारे लिए आज. करियर, दिव्या जी, एक सागर है. यू कैन चूज़ सो मैनी करियर्स. बात अभी केवल काबिलियत की नहीं है. प्लीज़ रिमेंबर, इट इज़ नॉट ओनली योर एबिलिटी दैट विल डिसाइड योर करियर, वॉट यू लाइक टू डू इन योर लाइफ. हम क्या ज़िंदगी में करना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है. क्या बनना चाहते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. बिकॉज जो आप अपने कहते हैं कि हेड से, हार्ट से और हैंड से, यू नो द 3H. रिमेंबर, what your head thinks, what your heart feels, and what your hands can do, all three combine to promote a career, the choice of a career. So remember, your interest, your passion, जो लगन से आपको अच्छा लगता है, आपके मिडिल स्कूल में आने के बाद आगे हाई स्कूल में जो सब्जेक्ट आपको बहुत प्यार से अच्छे लगते हैं. आजकल आप देखिए CBSE के पास इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है सब्जेक्ट्स का. वो केवल 4 5 या 6 सब्जेक्ट नहीं हैं, 60 70 80 सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें धीरे धीरे आप 12वीं तक आते हुए आप उसमें चॉइस आपके पास इतनी बड़ी है, एक मेनू कार्ड है. आप अपने माँ बाप से, अपने करियर काउंसलर से, अपने टीचर से, अपने सहपाठियों से, अपने दोस्तों से, लेकिन किसी के प्रभाव पे नहीं आना है. प्रेशर नहीं होना चाहिए. व्हाट इज़ योर लाइकिंग, एज दिव्या मैम इज सेइंग, व्हाट इज़ योर लाइकिंग and how you get the career opportunity, combine it together. Remember, ability, yes, but your interest and your personality is more important in choosing a career. जो दिल से चुना जाएगा वो ज़िंदगी भर खुशी देगा. केवल किसी के प्रेशर में आके करियर ले लें तो वो हम उतने खुश नहीं रहते हैं. Please think about it. Any doubts about this, you're always welcome to ask us. Get back to your teachers, get back to your parents, and ensure, ये ज़िद करिए कि हमें बैठ के इसके बारे में विवाद अक्सर होना चाहिए. Too much of material is available. More than that, a lot of dialogue is available, because we are a country, a 21st century nation, where the careers are so many. You don't have to worry about the choice. Just ensure that your emotions are suited for the exam right now. Go and celebrate. After that, career choices are open like an ocean for you. और यही चीज़ों को लेकर ध्यान में रख के आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हो व्हाट इज़ राइट फॉर यू, जैसा कि आपने एग्जैक्टली. एंड आपने ठीक कहा, माँ बाप भी कई बार चाहते हैं कि हमारा सपना भी पूरा हो, लेकिन उनका सपना उनकी दृष्टि से आप हैं. आप उनको कहिए मेरा सपना मेरी दृष्टि से मेरा अपना है. सो योर ड्रीम्स आर योर ड्रीम्स. You can talk to your parents and tell them, this is what I love to do and I would like to do, and help me in choosing that. The range of subjects,
the range of colleges. But remember, hard work is important. Parents are going to help us in our hard work. Choice is yours. Opinion can be from so many people in life, including parents. But the choice is yours, decisions is yours. Sir, COVID has created a lot of uncertainty in students' minds, like you already mentioned. Quite a lot. Yeah, yeah. तो ऐसे सिचुएशन में क्योंकि वो श्योर ही नहीं है तो वो डील कैसे करें, क्योंकि 2 साल पूरा पटरी से जैसे ना बाहर हो गए हैं. ये इम्पोर्टेंट है कि हम क्या सीखने को मिला. What did we learn? What did we learn from the COVID-19 pandemic? The world was onslaught. There's so much happening. There's so much loss of life. There's so much caretaking that happened. The world came together. As I said, the world became a family. The vaccines have gone all over the world. People are now helping each other. So we all learnt to come together. We all learnt to laugh together. We all learnt to sit on the dining table or have meals together in a traditional way. We became emotionally bonded much better in the last 2 years. I have heard grandparents telling that I feel so young now because there are people in the family talking to me. That's very sweet. So our grandfather tells me that he is feeling like a student and he wants to go to the school because he is celebrating life after COVID-19 has gone away. Similarly, our mothers, कहा जाता है कि मदर भगवान की प्रतिनिधि होती हैं. उनको एक मौका मिला सबकी केयर लेने का, एक ही साथ सबको मौका मिला मदर को समझने का. उनका हार्डवर्क जो सुबह 5 बजे से शुरू होकर 12 बजे तक चलता है ना, आप भी ये नोट कर रहे होंगे. अपने पिताजी को समझने का मौका मिला जो सबके लिए कोविड-19 में भी मास्क लगा के केयर लेके दफ्तर गए हैं ताकि घर की आमदनी चलती रहे. ये सब कुछ कब सीखते हम? हमें एक और मौका मिला, बट unfortunately it was COVID-19 who taught us the lesson that let us talk, let us share, let us care for each other, heartfully care for each other. Therefore what happened when the child was cut off from the school, एक स्कूल की पढ़ाई के साथ जो एडजस्टमेंट था, ऑनलाइन तो बहुत अच्छा हुआ है, आवर टीचर्स हैव डन अ मार्वलस वर्क, बट समवेयर जो बच्चे के माइलस्टोन्स होते हैं, एक इमोशनल माइलस्टोन जो होता है, कनेक्टिविटी जो होती है, कई बार वो पीछे रह गई है. तो डिप्रेशन काफ़ी दिखाई दिया. कुछ बच्चे कोप अप नहीं कर पाए ऑनलाइन क्लासेस से, कुछ बच्चे बुलिंग के शिकार हुए, जैसा आपने टीजिंग की बात करी थी, कुछ बच्चे ऑनलाइन साइबर वायलेशंस के शिकार हुए, कुछ बच्चे पीयर प्रेशर में आकर कहीं ना कहीं सब्सटेंस यूज़ के शिकार हो गए. कुछ ऐसी बातें भी रही हैं, बट आइए हम सब मिलके एज अ कंट्री हम इसको सामना कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास सब यंत्र हैं. कौन से यंत्र हैं? शिक्षा है, साक्षरता है और सहयोग है. सहयोग माँ बाप का है, टीचर्स का है, काउंसलर्स का है, और सबसे बड़ी बात एक सेलिब्रेशन का है. जब बोर्ड एग्ज़ाम आते हैं तो हमें पता लगता है कि चलो हम मिलके केवल ये कोशिश करें कि हम अच्छे तरीके से मेहनत करके आगे चलें. तब वो मानसिक सिम्टम्स जो अक्सर बच्चों को पीड़ित कर देते हैं वो हमें नहीं होंगे, क्योंकि वी आर नॉट ओनली प्रिपेयरिंग फॉर टुमारो, वी आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग टुमारो. वी आर ऑल्सो लुकिंग एट ensuring that we talk and share and care for each other. I think it is really going to help children if they tell their parents that please create that climate for me. That's true. Sir, Sukriti from UP has a question for us. Ji. She says the public humiliation that follows after results damages confidence. What to do in such a situation? I think we should help her. बहुत अच्छी बात कही आपने, अपने सवाल में ही उत्तर दे दिया है. पब्लिक ह्यूमिलिएशन, तो ये पब्लिक कौन है? हमारे आसपास के, हमारे पहचान के ही लोग हैं ना, जो मुझे जानते हैं. तो हम उनको अपनों का ह्यूमिलिएशन भी कह सकते हैं. तो उन अपनों से बोल दें, हम अपनों से बोल दें भाई मेरी मेहनत की कदर करिए, अप्रिशिएट माई एफर्ट, अप्रिशिएट माई एबिलिटी टू डील विद द सिचुएशन इन वेरी टफ सर्कमस्टांसेस. द लास्ट 2 years हैव बीन वेरी challenging for children. I would say most challenging for the young people of our nation, because for them it is about creating a life, creating a career, creating the balance between rapid human development. देखिए शारीरिक चेंजेस होते हैं बच्चों में, बड़े रैपिड होते हैं, उसके साथ जूझना, बंद होके 2 साल पढ़ाई के साथ जूझना. मैं समझता हूँ we all salute the children of India.
for being able to stand by, for the patience and the tolerance to be at home, not going to the playground. आप इमेजिन करिए एक छोटा बच्चा जिसने खेल का मैदान नहीं देखा है, बड़े बच्चे जिन्होंने बास्केटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल का नक्शा नहीं देखा. तो हैट्स ऑफ टू यू पीपल, सैल्यूटेशंस टू यू पीपल. बट पब्लिक ह्यूमिलिएशन कम्स फ्रॉम दोज पीपल who do not understand that what I have gone through. हम बात कर रहे हैं एम्पैथी की, संवेदना की. तो मेरा आपसे निवेदन है, वो जो पब्लिक आप कह रही हैं उनको प्लीज हैव द करेज. द कंट्री इज विद यू, द नेशन इज विद यू. You are a young star, you are the young voice of the nation for tomorrow, you are the voice of the adolescents. Tell those people, whether they are in the school or in the family, hey listen, I know what I can do. Give me that hand, give me that holding of the shoulder, give me that climate, give me that opportunity. I'll prove myself. So there is no question of humiliation, because the people who do not understand us, I think we learn to ignore them. है ना? People who understand us, we walk with them. And I'm sure हमारे parents, हमारे grandparents, हमारे teachers, हमारे साथी, close friends जो होते हैं, they're all going to be the ones who will encourage me and not humiliate me. I'm sure Divesh you'll agree that people who matter, they will always encourage. The people who don't matter, don't give importance to whatever they say. And let's not get carried away by comments, because these comments, these opinions, these remarks will keep coming throughout life. We have learned so much from our Honorable Prime Minister. Any form of situation in life, any challenging waves in life, I think the boat has to keep sailing like a turf, you know, it's like you are sailing. And that sail is more important. Do not care for any remarks that are unhealthy. We need to prove that we can, we will, and we should do it. Take help, take love and care from the people who matter. Reaching the shore is more important. Absolutely. Thank you, sir. And the boat will always have straddling effect. The tossing and turning of the boat is the charm of the journey, isn't it? सर जैसे लाइक सर सेड कि कोविड-19 के बाद हमने बहुत कुछ सीखा है, सो देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग टू एवरीथिंग. Absolutely. That way you can focus on the positive. Rita, in fact, I came across a large number of students. The CBSE has a wonderful program for building life skills ambassadors in schools, and we are able to interact with so many students across the country, from Kendriya Vidyalayas, from Navodaya Vidyalayas, from so many schools, right from corner of the country in Far East to Tamil Nadu, Kerala to Kashmir. I mean, it's such a wonderful feeling that the voice of the young people, the adolescents of India, is unified voice. There is so much of unity in their diversity. They talk about the language of love, they talk about the language of care, and they need that empathy from all the people who matter, including our leaders of the country, including our parents, including people who are thinkers for the future, like our scientists who think about the 21st century launches which are going to change the complexion of our country. So do not at all feel that you are alone, that you are lonely. You have so much love and affection around you. Yes, we all should walk together to create that love and affection environment. That I agree with you. And no more will be a time when we cannot connect with each other. I think COVID-19 taught us the lesson. What may come, what may be the tension जिसको हम कहते हैं, कोई भी दुविधा हो जिंदगी की, लेकिन हम सब मिल के सामना करेंगे, संवाद करेंगे और एक दूसरे के सारथी बनेंगे, तब कोई ना कोई समस्या बड़ी आम लगेगी. कॉमन डे टू डे प्रॉब्लम्स होंगी. जस्ट लाइक योर एग्जाम्स नाउ, इट इज़ जस्ट अ सेलिंग बोट नाउ. एक छोटा सा कदम आएगा. एक कहते हैं कि एक एग्जामिनेशन भी एक छोटा सा ATM है. बस वो अपना शीट एग्ज़ाम की ख़त्म करिए, सोच के जाइए. बट हाँ, वी विल टॉक अबाउट what do I do during the exams, during the examination 3 hours. We'll talk about that. But very important is, well prepared is not about well prepared for marks. Well prepared is well prepared for ensuring that I complete the task which I do in the examination hall. And I think you're all preparing very well for it. So before we talk about what to do in the 3 hours, Yes. we can address 1 or 2 more questions by our students. प्रयागराज से शिवांगी जी पूछ रही हैं, a lot of times teachers judge us for not performing and this pulls down the morale. How to stay unfazed in such situations? I have a
sincere submission to our honorable teachers that every child matters and no child to be left behind. And child is the future of our country. Whatever may be the talent, whatever may be the interest, whatever may be the vision, the opinion and the feeling of the child, we all need to celebrate that. So constant approval, constant validation, जिसको हम कहते हैं एक समर्थन देते रहना बच्चे को, एक अध्यापक का काम है, एक माँ बाप का काम है और भाई बहन का या दोस्तों का भी काम है. मोरल डाउन क्यों होता है? मोरल डाउन इसलिए होता है क्योंकि मेरा आत्मविश्वास कम हो जाता है, मेरा सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है. और सेल्फ एस्टीम क्यों कम होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी कोशिश को भी समर्थन नहीं मिलता है. माई एफर्ट इज़ माई सेलिब्रेशन, नॉट द रिजल्ट. दिव्या जी, ये बहुत कॉमन एक शंका बच्चों के दिलो दिमाग में होती है कि मेरी एफर्ट की तारीफ़ क्यों नहीं होती है, खाली रिजल्ट की क्यों होती है. आज मैंने कोशिश करी, आज मैंने एक मेहनत करके एक सुंदर सा आंसर लिखा, मैंने रिवाइज़ किया, कुछ पॉइंट्स ऐसे लिखे जो समरी में एग्ज़ाम से पहले लिखते हैं बच्चे, और अपने माँ बाप के साथ बैठ के उसको रिवीजन किया, निमोनिक्स बनाए, खाते पीते चलते फिरते घर में मैंने बोलते बोलते अपना सब्जेक्ट को रिवाइज़ किया, जिसको कहते हैं कैजुअल वे ऑफ रिवाइजिंग, ताकि बिना टेंशन के हो. उस बात को भी बच्चे के तौर तरीके की उसको अप्रिशिएट करिए. आप देखिए, हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होता है. मानते हैं कि समय ज़रूरी है, एक रात की नींद और जलपान, एक हेल्दी डाइट जिसको हम कहते हैं कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स एंड विटामिन्स का बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है बच्चों. और साथ में 6 से 7 घंटे की नींद भी ज़रूरी है. ये नहीं कि रोज़ हम 4 बजे 5 बजे सो रहे हैं तो उसका हैंगओवर जो होता है फिर आपको फोकस नहीं करने देता. अगर हमारे केयरटेकर्स, हमारे पेरेंट्स इन बातों से परिचित हैं, वो जानते हैं कि वो हमें सलाह दे रहे हैं, तो मानिए. डाइट, स्लीप एंड लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, डीप ब्रीदिंग, not only once, every 1 hour you practice about 3 to 4 times. It takes hardly 10 seconds. Take deep breath while you are studying every 1 hour. 3-4 बार आप एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अपने लंग्स को दे रहे हैं, हार्ट को दे रहे हैं, ब्रेन को भी दे रहे हैं, फ्रेशनेस आ जाती है. ये बातें अगर मम्मी पापा कह रहे हैं, ये बातें अगर हमारे टीचर्स सलाह देते हैं तो उनको अपनाइए. लेकिन मोरल डाउन नहीं होना चाहिए. अगर ऐसी कोई बात होती है जो आपको अच्छी नहीं लगती है, आपको लगता है कि डिस्करेजिंग हो रही है, मानते हैं ना आप, अनजाने में अगर कोई कमेंट, कोई रिमार्क अपने परफॉर्मेंस के बारे में, एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बारे में किसी ने ज़्यादा मेरे को डिस्करेज कर दिया, प्लीज़ उसको रिबफ करिए. बोलिए कि मैं एग्ज़ामिनेशन अपने मन की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए हम दे रहे हैं. हम केवल मार्क्स लाने के लिए, रिज़ल्ट लाने के लिए नहीं दे रहे हैं. एक अगले पड़ाव में जाने के लिए कदम है ये छोटा सा. बिकॉज लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन, नॉट ओनली द एग्जामिनेशन. लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन. सच अ वंडरफुल गिफ्ट, such a wonderful gift of God. After COVID-19, hopefully it does not come back again, but we are all prepared. The country is prepared. The fact that we are having lot of gratitude, I think gratitude एक बहुत बड़ा एक एरिया है हमारे ज़िंदगी का जो हम अक्सर भूल जाते हैं. We need to have gratitude for our children also, because they are the source for our smiles also, isn't it? You agree? Yeah. Children provide the smiles. I agree. When you play with them. सो दिव्या मैम भी यही बता रही हैं कि बच्चों की मुस्कान, बच्चों की खूबसूरती उनके फीलिंग्स में दिखाई देती है. हमको वो फीलिंग्स को खूबसूरत बनाना है, हमको उनको फीलिंग्स पढ़ाई के साथ जोड़कर मेहनत बनाना है, रिजल्ट नहीं बनाना है केवल. एंड दैट इज़ वेयर आई थिंक मोरल डाउन नहीं होगा, सेल्फ एस्टीम डाउन नहीं होगी, आपकी आत्मता, आत्मविश्वास कम नहीं होगा. क्योंकि वो जो दृढ़ता है, दैट फर्मनेस टू अचीव, मूव अहेड इन लाइफ, comes from people who matter, who create the atmosphere. I think we have just spoken about that and continue to do that till you move into the higher education. There automatically you will find your answers. सर, जैसा कि आपने कहा कि रिसेस का टाइम जो था वो आज भी हम याद करते हैं, वो हमारा फेवरेट टाइम हुआ करता था. तो स्टूडेंट्स यूजुअली जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, पढ़ाई होती है, पीटी पीरियड जो होता था लोगों का फेवरेट होता था, गेम्स पीरियड, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कुछ लोगों की रुचि ज़्यादा होती है. तो हाउ डू दे प्रिपेयर फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर, टाइम कैसे मैनेज करें बिटवीन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड एग्जाम प्रिपरेशन, कैसे वो लोग बैलेंस करें इस चीज़ को? वेरी थॉटफुल क्वेश्चन. मेरा एक इसमें थोड़ा सा एक वैज्ञानिक व्यू पॉइंट है दिव्या जी. आई फील हम इस शब्द को
पीछे ना छोड़ दें एक्स्ट्रा करिकुलर। मैं समझता हूँ ये करिकुलर क्यों नहीं है, क्योंकि हम उसको जब हम एक्स्ट्रा बोलते हैं ना तो देखा जाएगा, टाइम मिला तो एडजस्ट कर लेंगे। आई फील enjoying game outside in the playground, enjoying painting, music, gardening, artwork, सिलाई बुनाई, कुकिंग, स्टिचिंग, ये ज़िंदगी के निजी हिस्से हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे शिक्षा प्रणाली का हिस्सा है ये। दे आर नॉट एक्स्ट्रा करिकुलर, दे आर पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। हर स्कूल को ये मौका देना होगा, हर परिवार को ये मौका देना होगा, ताकि बच्चा एक खुशी से अपने इंटरेस्ट और हॉबीज़ को भी चुने जितना वो अपने सब्जेक्ट की किताबों को चुनता है। एक बुक शॉप में जाके केवल साइंस और सोशल साइंस एंड हिस्ट्री और बाकी किताबें क्यों चुने, लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी या कोई भी हो। बच्चा, आप जो बता रही हैं, एक गार्डनिंग के टेक्निक क्या होते हैं, गिटार सीखने की किताब क्यों नहीं है, एक कुकिंग सीखना है मुझे और मुझे हॉबीज़ की एक किताब खरीदनी है। माँ बाप इनकरेज करें, रादर जब आप अच्छी किताबें या कोई डाउनलोड करते हैं मटेरियल, एक्स्ट्रा करिकुलर टाइप की एक्टिविटीज़ जो अब करिकुलर हैं, दे आर पार्ट ऑफ माय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन। याद रखिए, पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, माँ बाप का भी, टीचर्स का भी। मेरे हॉबीज़ में अगर पिताजी या मम्मी पार्टिसिपेट करती हैं तो हॉबी की कीमत बढ़ जाती है। कई बच्चे दिव्या जी आके बोलते हैं कि काश पिताजी मेरे साथ 10 मिनट के लिए क्रिकेट खेल लें, काश मेरे साथ छुपा छुपी खेल लें, या पापा एक पिगी बैग बन जाएं। सो व्हेन दे आर फीलिंग दे वांट इट, एंड व्हेन दे वांट इट वी हैव टू गिव देम। लेट अस गिव देम द प्लेग्राउंड इन द हाउस। देयर आर thousands of family who created a playground during COVID-19 inside the angan of the house, inside their own living room. So you're partnering with the child's own development. मैं कहता हूँ माँ बाप को कि कई बार अपने बच्चों के साथ बच्चा बन जाइए, अपने बच्चों के साथ बड़े बन के मत रहिए। उनकी दुनिया उनकी नज़र से, उनके ख्यालों से देखिए, उनके सपनों से देखिए। The chances are that you will celebrate your own child's childhood. That's true. Isn't I it? think kids look up to parents and हम जल्दी अडल्ट होना चाहते हैं, जल्दी ग्रोन अप बनना चाहते हैं, पर जब अडल्टिंग शुरू होती है हमारी, हम रियलाइज करते हैं बचपन ही अच्छा था। तो आई थिंक एज पेरेंट्स इट्स रोल मॉडल बन जाते हैं। फिर हम रोल मॉडल बनते हैं तब जब हमें बच्चे सिखाते हैं कि आप भी हमारे रोल मॉडल बनिए। नहीं तो देखिए, बच्चों से आप पूछे ना कौन से रोल मॉडल हैं, बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है, हमारे क्रिकेटर्स हैं, हमारे बॉलीवुड स्टार्स हैं, हॉलीवुड स्टार्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, बट दिल से बच्चा चाहता है कि मम्मी पापा भी रोल मॉडल रहें, है ना? हाँ जी, मार्गदर्शक बने। और वो मार्गदर्शक बनने के लिए थोड़ी सी मेहनत ज़रूरी है, ताकि हम एक दूसरे से विवाद करें, बातचीत करें, समय निकालें। आई फील पेशेंस, टॉलरेंस एंड कम्युनिकेशन। रिमेंबर, पेशेंस, टॉलरेंस एंड कम्युनिकेशन फॉर ईच अदर एंड रेस्पेक्टिंग द डिग्निटी विद इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आत्मविश्वास, एक डिग्निटी, एक अस्तित्व जो होता है, वो एक कम्युनिकेशन के साथ कॉन्स्टेंटली कन्वे करें। वर्ड्स नीड टू बी एक्सप्रेस्ड। कहते हैं कि इफ़ यू लव समबडी शो इट। अगर बच्चों से प्यार है तो एक जादू की झप्पी बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों से हम बहुत प्यार करते हैं तो उनको 2 बार दिन में बोल भी दें कि बहुत प्यारे हो, बहुत प्यार करते हैं हम तुमसे। आई थिंक इट इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्रेट इंडियन फैमिली टू सेलिब्रेट लव, to celebrate communication and to celebrate the passion of understanding each other. Exams तो बहुत छोटी सी बात रह जाती है। so our takeaway is appreciation is also important with criticism and word extra को extra curricular से हम हटा देंगे। बिल्कुल। So we have a question. Sometimes pressure and expectations of parents is more exerting than studies. So how to deal with that? Ashutosh from Bihar has asked this question. आशुतोष, प्रेशर जो है फैमिली का मुनासिब है, होता है, नॉर्मल भी है। वो प्रेशर हम कितना उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि मेरे लिए एक दुविधा है या डिस्कम्फर्ट है, ये हमारे ऊपर भी है। आप प्रेशर को केवल नेगेटिव मत समझिए। हमने जैसे अभी बातचीत करी है, हम और दिव्या जी डिस्कस कर रहे हैं कि एक सलाह देते वक्त, एक सजेशन देते वक्त कभी कभी मम्मी या पापा इनडायरेक्टली लगता है कि प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो हमारा इंटरप्रिटेशन है बेटे। वो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेशर है, वो सजेशन दे रहे हैं कि भाई हो सकता है कि अगर आप थोड़ा सा टाइम से सो जाओ तो मॉर्निंग में आपको उबासी नहीं आएगी, आप थके हुए नहीं होंगे। क्योंकि बच्चे जब सोशल मीडिया पे बहुत लेट तक रहते हैं, अब देखिए अगर कोई ना कोई लाइकिंग है
सोशल मीडिया की तो कई बार समय पता नहीं लगता है, एंड आपको ताज्जुब होगा कि 3, 4, 5 बज जाते हैं कई बार, और एग्ज़ाम गोइंग बच्चे भी कई बार सोशल मीडिया पे बहुत देर तक रहते हैं। इसमें कोई सही गलत की बात नहीं हो रही है, इसमें जो स्वास्थ्य है उसकी बात हो रही है। अगर मम्मी स्वास्थ्य के लिए, हमारी फिजिकल एनर्जी, हमारे कंसंट्रेशन के लिए, पढ़ाई के लिए अगर सलाह देते हैं ताकि तुम अच्छा पढ़ पाओ कि ऐसे करो, उसको प्रेशर मत समझिएगा। और दूसरी बात, वाकई में मैं मानता हूं कि आपके ऊपर प्रेशर कभी कभी जेन्युइनली भी आ जाता होगा, कभी कभी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक्सपेक्टेशन एंड कंपैरिजन, ये दोनों चीज़ें बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर डालती हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, एक उम्मीदें सपनों की, माँ बाप के सपने, उनकी उम्मीदें और उनकी तुलना कज़न्स के साथ, कभी कभी और बच्चों के साथ जो कंपैरिजन होता है, तो हम मानते हैं बिल्कुल 100% आप सही हैं, क्योंकि वो जो एक्सपेक्टेशंस और जो तुलना होती है परिवार में अनजाने में कई बार ज़्यादा हो जाती है। और ये आप ही कदम उठाइए, आप ही एक कदम उठाइए, मम्मी पापा को बोलिए कि मेरे को इन बातों से प्रेशर लगता है, नेगेटिव फीलिंग होती है, कई बार मन उदास भी हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो बोलिए उनको। मेरा निवेदन है बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से भी, जैसी भी फीलिंग हो, जब भी हो, किसी के भी प्रति हो, बोल दीजिए। बिकॉज कई बार हम जब दब जाते हैं, खामोश हो जाते हैं या मायूस हो जाते हैं, कोई बातों को, फीलिंग्स को शेयर नहीं कर सकते, उसका इजहार नहीं कर पाते, कई बार वही एक मानसिक बीमारी बन जाती है, जिसको कई बार हम लोग एक डिप्रेसिव इलनेस कहते हैं, या एंग्जाइटी के डिसऑर्डर्स में जाकर डिप्रेशन के साथ बाहर आता है। तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड, शेयर एंड देखिए। अगर आपको लगता है कि वो मान्यता नहीं मिल रही है तो घर में और कोई भी सदस्य है, आपके फ्रेंड होंगे, उनको बोलिए मम्मी पापा से बात करें, आपके टीचर पेरेंट्स से बात कर लेंगी। कई लाखों टीचर्स हैं जिन्होंने फ़ोन करके मम्मी पापा को समझाया है ड्यूरिंग द कोविड-19 कि बच्चा थोड़ा सा प्रेशर महसूस कर रहा है, आप डीकम्प्रेस करिए, घर में प्रेशर मत डालिए, सेलिब्रेट करिए, बातचीत करिए एंड स्कूल आ जाइए। हम लोग मिलके बच्चे के साथ बैठ के एक अपना रूटीन बनाते हैं, एक हेल्दी टाइम टेबल बनाते हैं, जिसमें डाइट है, आपका जो बैलेंस्ड स्लीप पैटर्न है, थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइजेस हैं। मैं कहूँगा कि बहुत बारीक हल्का सा योगा जो है, एक सिंपल प्राणायाम, सिंपल सूर्य नमस्कार जो है, और जो सिंपल एक्सरसाइजेस बच्चों के लिए भी हैं, योग में एक साधना है, प्रत्याहार है, क्यों ना इसको हम घर संसार में अपना लें, पेरेंट्स भी करें। रिमेंबर, प्लीज़ टेल योर पेरेंट्स कि वो भी रोल मॉडल बने, वो भी मार्गदर्शक बने। आने वाले समय में हम कितना याद रखेंगे कि भाई मेरे फादर मदर ग्रैंड पेरेंट भी मेरे मार्गदर्शक रहे हैं। दे विल डू, दे शुड डू व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ यू टू डू, है ना। सर, जैसा कि आपने कहा कि टीचर्स, ऐसा काफ़ी बार हुआ है कि टीचर्स पेरेंट्स को कॉल करके बताते हैं, तो आपके हिसाब से टीचर्स का क्या रोल है टू आइडेंटिफाई दीज मेंटल हेल्थ इश्यूज इन स्टूडेंट्स? कितना बड़ा रोल है पेरेंट्स से मुझे लगता है ज़्यादा? टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। आने वाले समय में इस बात का निर्माण हो रहा है। हमारे देश का शिक्षा मंत्रालय इस पर बहुत बड़े पैमाने पे मानसिकता को एक महत्व देते हुए पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं, आ रही हैं, और भी अच्छे मॉड्यूल्स बन रहे हैं, जिससे किंडरगार्टन से लेके 12th स्टैंडर्ड तक तमाम स्कूलिंग ईयर्स में एक टीचर का रोल एज साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, एज साइको सोशल सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स इन इंडिया इज कमिंग इन अ बिग वे एंड ऑलरेडी कम। एक मनोदर्पण पोर्टल बन गया है जिसमें मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ पर बहुत चर्चा होती है, बहुत गहराई से बच्चों को मौका मिलता है, पीयर एजुकेटर्स उसमें आते हैं और कई एक्सपर्ट्स आते हैं, अपनी राय शेयर करते हैं। मैं चाहूँगा कि हर टीचर इस बात से परिचित रहे कि वो बेहतरीन काउंसलर हैं। टीचर्स आर बेस्ट काउंसलर्स बिकॉज दे आर द फर्स्ट पीपल टू नो द चाइल्ड. Our counselors, our psychologists are helping the teachers to help the child, because teachers can identify early, can identify those difficult emotions which the child is trying to cope up but unable to cope up. कई बार ऐसा होता है कि बच्चा कोप अप करना चाह रहा है, नहीं कर पा रहा है, क्लास में प्रेशर है, बुलिंग है, टीजिंग है, पीयर प्रेशर फॉर ड्रग्स है, पीयर प्रेशर फॉर एग्रेशन, वायलेंस है, या माँ बाप के साथ कुछ अनबन है। टीचर इन बातों को बड़ी होशियारी से पहचान लेती हैं, क्योंकि क्लास में एक फैमिली है, 30-40 लोगों की फैमिली है। टीचर अपनी नज़र से, अपने बातों से, अपनी फीलिंग से पहचान लेती हैं। लेकिन ये और बेहतरीन तरीके से कैसे किया जाए, इन फ्लैग साइंस के ऊपर काफ़ी कुछ अब मटेरियल बन रहा है, ट्रेनिंग्स हो रही हैं, और अभी आने वाले समय में और भी इस बात को आगे बढ़ाया जाएगा। Also, I think students spend more time in schools and behavior भी जो तुम्हारा घर पे होता है
फैमिली के साथ और जो तुम बिहेव करते हो वाइल विद योर क्लासमेट्स थोड़ा डिफरेंट होता है, सो इट्स इजियर फॉर टीचर्स टू आइडेंटिफाई इश्यूज। एब्सोल्युटली, एंड आई ऑलवेज स्ट्रांगली फील, अगर हम ये आंकड़े बता रहे हैं कि 10 से 15% और हो सकता है ज़्यादा भी बच्चे हमारे देश के मानसिक बीमारियों से पीड़ित हैं, खासकर इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, not just about mental retardation and developmental problems. Remember, we are having a huge volcano of mental health conditions. And if school is the platform, school mental health is the ideology, school mental health promotion is the vision, I think हमारे देश के मनोचिकित्सक, हमारे देश के जो मनोवैज्ञानिक हैं, ये सब मिलकर अगर स्कूल मेंटल हेल्थ प्रमोशन को प्रमोट करें जैसा हम पिछले 20 साल से करते आ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि मेंटल हेल्थ कंडीशंस जो बच्चों में होते हैं वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएंगे। सर्कमस्टेंसेस मेरे जीवन के, मेरे घर संसार के, मेरे स्कूल के वातावरण के अगर मुझे पुश कर रहे हैं, मुझे प्रेशर डाल रहे हैं एक मानसिक रोगी बनने के लिए, मुझे लगता है फिर ये हमारी कमी है। हमें इसके लिए जल्द ही एक कोऑर्डिनेटेड, इंटीग्रेटेड, इंक्लूसिव क्लासरूम बनाते हुए हमें मेंटल हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस देना होगा, जैसे अभी NCPCR भी बहुत बड़े पैमाने पे दे रही हैं। और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली रेमेडी एंड ऑल्सो जहाँ पे नीडफुल है, जहाँ पे थेरेपी की ज़रूरत है, जहाँ पे बच्चों को इलाज की ज़रूरत है, क्यों ना टाइमली रेफ़र किया जाए। हमारे साइकोलॉजिस्ट बहुत एक्सपर्ट हैं, हमारे साइकेट्रिस्ट बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन देश में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की कमी है। इसलिए हमारे टीचर, हमारे पेरेंट्स, हमारे फर्स्ट एड काउंसलर हैं, पहले काउंसलर हैं, उनको ट्रेनिंग देना, उनको समझना, उनको समझाना कि बच्चों की मनोदिशा को समझें, बच्चों के माइलस्टोन्स को समझें और उन्हें धुतकारें नहीं, कहीं ना कहीं उनको वो मौका ना दें कि वो अपनी नज़र को कम समझें, अपने सेल्फ एस्टीम को कम समझें। आई थिंक इट इज़ आवर फैमिली एंड स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपार्ट फ्रॉम the mental health professionals who are helping in a big way in our country. That's true. We are all in this together. Yeah. Sir, Samar from Kanpur wants to know how to maintain a healthy mindset during exam. ज़्यादा करके एग्जाम के टाइम पे होता है कि तुम्हारा मन विचलित रहता है, तो कैसे एक हेल्दी माइंडसेट मेंटेन रखें? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब थोड़ा सा बायोलॉजिकल भी है, क्योंकि आजकल हर साल ये बात आती है और अब तो पोस्ट कोविड के बाद है तो शायद एक चुनौती थोड़ी ऐसी अलग लग रही है। बट रिमेंबर, मैं आपको 2-3 टिप्पणियाँ ज़रूर दे दूँ। डोंट फॉरगेट, स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ भी कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम, इमोशनल डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई दी है ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स, अक्सर ये देखा जाता है कि वो बच्चे मिनिमम भी नींद नहीं ले रहे हैं। प्लीज़ appreciate and tell your friends also, tell your classmates, tell your school friends, whoever are appearing for the exams, remember about 6 to 7 and need be even 8 hours, at least 6 to 8 hours की नींद बहुत ज़रूरी है। और केवल नींद नहीं, नींद का समय ऑलवेज रेगुलरली, अगर आप 4-5 बजे सो के 12 बजे उठ रहे हैं तो बॉडी का रिदम थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, वो डाइल्यूट हो जाता है। हमारे शरीर को डाइजेशन, एसिमिलेशन और कई चीज़ें रात की नींद में एक बॉडी का पैटर्न सेट होता है। अगर वो नींद उसको नहीं मिलेगी तो दिन में सोने के बाद, पूरे दिन सोने के बाद पेट में एसिडिटी, चिड़चिड़ापन, थोड़ा बहुत मन की डिफ़िकल्टी होना, कोप अप करने की, थकावट सी लगे रहना, ये सब भी हो जाता है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, इट इज़ नॉट ओनली द स्लीप एंड द नंबर ऑफ आवर्स बट द टाइमिंग ऑफ द स्लीप। हाँ, मान लिया कि परीक्षा का टाइम है तो 11:30-12 भी बज गए, बट कोशिश करिए कि मिडनाइट तक आप विश्राम करें और सोने चले जाएं, ताकि 6, 7, 8 बजे भी आप उठेंगे, आपका पूरा दिन फ्रेश रहेगा, कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा और आज जैसा आपने बताया कि माइंड बिल्कुल हेल्दी रहेगा। सेकेंड पॉइंट, बैलेंस डाइट। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब खाइए, सब कुछ, लेकिन कुछ बातें हैं जैसे मैदा है, आलू है, चीनी है, ज़्यादा ऑयली चीज़ें हैं, थोड़ा कम रखिए। जंक फूड, फास्ट फूड, थोड़ा मैं समझता हूँ कि हमें लेज़ीनेस देता है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम्स भी बच्चों में होती हैं और ये भी अब लिंकेज अब रिसर्च में आ रहा है कि हाई कार्बोहाइड्रेट फूड जो होता है, हाई शुगर का फूड जो होता है, बच्चों में कहीं कंसंट्रेशन, अटेंशन की प्रॉब्लम्स भी योगदान दिखाई दे रहा है, हाइपर एक्टिविटी में दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा लिंकेज ये है, तो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या शुगर का फूड कम करिए और प्रोटीन्स और लॉट ऑफ वाटर, लॉट ऑफ हाइड्रेशन,
coconut water, nibu pani, buttermilk and many things. Your mother can be knowing this very well. And also don't forget, fresh green vegetables हैं, fruits हैं, salads हैं, हमेशा मदद करते हैं फोकस के लिए, अटेंशन के लिए, ध्यान के लिए. एक बैलेंस डाइट को मेंटेन करा. आपको याद होगा एक फूड पिरामिड होता है. फूड पिरामिड में बहुत अच्छा कलरफुल तरीके से बताया जाता है कि कौन से एसेंशियल फूड्स हैं जो हमें रोज़ लेने चाहिए. नॉट टू फॉरगेट द विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड ऑल्सो लॉट ऑफ हाइड्रेशन एंड वाटर इनटेक. सो प्लीज़ फोकस ऑन दैट. लास्टली मैंने ऑलरेडी बताया है, सिंपल 10-15 मिनट के लिए योगा. एक घर के अंदर ही थोड़ा सा वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्किपिंग कर लिया या मैदान में चले गए. स्ट्रेचिंग द जॉइंट्स and also helping your muscles to relax a little bit. Meditation, deep breathing exercise हमेशा आपके healthy mind और healthy body and healthy focus concentration के लिए मदद करेंगी. Keep on talking, keep on sharing. That is always being discussed. Emotions need to be shared. That is obviously going to debunk or remove all the negative energy in your mind, because you are always going to be celebrating the interaction with your parents and your friends. I think sir what you have said is going to help us also a lot. And कहा जाता है ना कि तुम फास्ट थोड़ा सा कर के रह सकते हो, बट नींद के बिना रहना मुश्किल है. It affects your performance levels. So that is a good way to maintain a healthy mindset during exams, I think. Bikrant from Patna has asked us कि how to increase your study time and avoid procrastination. Very good, Vikrant. I think both are the very important angles during the exams. And मेरा आपसे निवेदन है कि आप थोड़ी सी प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में बिल्कुल फिक्र ना करें. याद रखिए कि इतने बेहतरीन तरीके से जितनी बेस्ट मेहनत हो सकती थी आपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर किया है, isn't it? You managed your 24-hour rhythm. आपने क्लासेस भी सारी अटेंड करी, आपने प्री बोर्ड भी दिए. अब आपके पास जो थोड़ा सा समय घर पे है पढ़ने के लिए, जो स्टडी हॉलीडेज़ हैं, लाइकली है कि हम एक 80-20 प्रिंसिपल होता है ना, कि हमने सोचा कि भाई आज हम 100% कर लेंगे, लेकिन उसमें से अगर 20-25% आज नहीं रिवीजन हो पाया तो कोई बात नहीं, वो कल का एक्स्ट्रा टाइम हम 1 घंटा रख लेंगे. वील मैनेज इन द मॉर्निंग और एट अ सूटेबल टाइम इन द इवनिंग. प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ नेवर अ प्रॉब्लम, बट रिमेंबर प्रोक्रेस्टिनेशन का कारण क्या है वो भी ज़रा हम कभी कभी सोच लें. हो सकता है कि एक जो कहते हैं ना कि TTD जो होता है, टू डू लिस्ट जो होती है हमारी, जो एक टू डू टाइम टेबल जो होता है, वो हम सवेरे मम्मी पापा से डिस्कस कर लें. भाई आज का मेरा प्लान सवेरे का, दोपहर का और शाम का 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें. और आप अपने अलमारी पे या दीवार पे एक टाइम टेबल रफली बता रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट वो स्कूल वाला टाइम टेबल नहीं है जो 35 मिनट्स का होता है या 40 मिनट्स का, ब्रॉडली कि मुझे 12-1 बजे तक आज ये रिविज़न करना है, फिर आराम करके लंच करके ये 3-4 घंटे, फिर शाम का समय. आई एम श्योर व्हेन यू नो दैट यू आर डिवाइडिंग द डे इनटू 3-4 पार्ट्स, देन यू आर एबल टू कीप अ पेस ऑल्सो, है ना. जैसे 100x4 100 एक रिले होती है, रेस होती है. ये दौड़ तो है ही नहीं, ये तो एक हमारा नियम है ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का. तो आप दिन में 3 पार्ट्स जो डिवाइड करते हैं उसका करिकुलम आप बना के सवेरे रखें. देन यू नो दैट इफ़ आई मिस आउट ऑन द फर्स्ट हाफ, आई विल ट्राई टू मेक अप इन द सेकेंड हाफ, और आई विल डू इट इन द थर्ड हाफ और इवन टुमारो. देन दैट एंग्जाइटी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन विल नॉट बी देयर. स्मॉल बिट्स में हम पढ़ाई को रिवीजन में धारण करें और बहुत ज़्यादा पूरी किताबें ना पढ़ें. अब देखिए ये एग्ज़ाम वॉरियर्स जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने बहुत सुंदर तरीके से पेश करी है हमारे लिए, ये इसमें कई चैप्टर्स ये बताते हैं कि छोटे छोटे बिट्स में पढ़ें. हम ये ना सोचें कि पूरी किताब पढ़नी है रिवीजन के लिए. जो नोट्स बनाए हैं, जो हमने कुछ अपने पॉइंट्स लिखे हैं, टेक्स्ट बुक के ऊपर जो स्टिकर लगाए हैं, छोटे छोटे जो पॉइंट्स लिखे हैं, उनको याद करें. बिकॉज याद रखना कि जो क्लू होता है वो क्लू आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने नहीं देगा. जो क्लू के 3-4 पॉइंट होते हैं हर पेज पे पेंसिल से या पेन से लिखे हुए, दे विल हेल्प यू टू रिवाइज अ लिटिल बेटर. सो योर रिविजन टेक्निक्स इन डे टू डे टाइम व्हेन यू आर coming close to the board exam, please talk to your family, talk to your teacher, they will help you. You will not procrastinate, you will not feel tense and you will not feel worried also. The idea is to be familiar with your book. एक एक वर्ड किताब का तो हमें पूरा मेमोराइज थोड़ी करना है. Sir, another question we have from Priyanka Saraswat, Madhya Pradesh. She says the pattern of comparison is very damning to self-confidence. How to deal with such pressure? Such a bold question, very courageous, and we all agree. I had already mentioned
comparison, expectations, and somewhere living the dreams through the child. I think these are three areas where I sincerely request all the parents and the teachers and also grandparents, let us not put the pressure on the child. ये दुनिया उनकी है और कल उनकी ही है और कल हमें वो आगे लेके चलेंगे. ये इम्पॉर्टेंट है कि वो दिलो दिमाग से सेलिब्रेशन करते हुए, जश्न मनाते हुए, with lot of fun and frolic, enjoyable studies, enjoyable board exams, and also not to forget, let us not keep on comparing A to B and B to C and A to C. Somewhere I think comparison हमें अपने आत्मता से, आत्मविश्वास से पीछे कर देता है. हम अपने अधिकार में उम्दा हैं और बेस्ट हैं. I am the best. I celebrate that I am the best and my mummy and papa think also that I am the best. That's all. No comparison with anybody. And I think this will help you in the examination hall. दिव्या जी, ये बहुत कॉमन सवाल परीक्षाओं के पहले आता है. वो 3 घंटे में आप सुकून से पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए. आपको टाइम दिया जाता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने का. आराम से लंबी सांसें लेके पढ़िए. जो आंसर आपको लगता है पहले लिखना है, मुझे थोड़ा जल्दी याद आ रहा है, पहले लिख दीजिए. ये सुविधा आपके पास है. Leave the questions which you want to recall a little later and try to wind up at least about 10-15 minutes before, because you have a time to check the papers, check the roll number, check the name, and so many other things. Remember, don't forget your I-card, don't forget your stationery and the morning preparation. Very important, don't go to the examination hall empty stomach. I have a request, छोटा हल्का ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी होता है. एनर्जी मिलती है, कंसंट्रेशन मिलता है. पानी भी खूब रखिए अपने साथ. एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टाइम इन लाइफ ओनली टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अनदर सेलिब्रेशन. ये एक और जश्न है, इसको आप सिर्फ एक चलते चलते आगे चले जाएंगे. यू विल रियलाइज इट इन कॉलेज. आई टुक द टेंशन फॉर नो रीज़न. इट वॉज सच एन ईजी एग्जाम बिकॉज इट इज़ नॉट एन इवैल्यूएशन. इट इज़ एन एग्जामिनेशन टू गो टू द नेक्स्ट step in life. All the best to all of you. We are very sure that you will take the examination forward on your shoulders with lot of health, happiness and sharing of emotions with your family. So we do have 3 questions which we can take in the end. Yes. So Ravi from Gurugram says he's a parent. He has one daughter that is 10 years old and he wants to know about some applications on the net that are safe and can engage children in activities that leads to some learning outcomes. There are a lot of them available. You can even go to some of the academic sites, not to name a few, but then I think it's important to go and even revise them with your school, and your friends also might be carrying out some of these revision apps where, but please keep this in mind that do not get into something new at the moment. दिव्या जी, ये बहुत important है कि जब एग्ज़ाम इतने करीब हैं तो नए ऐप्स के साथ नई डीलिंग करना कई बार थोड़ा बच्चा कंफ्यूज भी हो जाता है. कई बच्चे हमारे पास आए हैं, वो कहते हैं कि हमने ये डाउनलोड करके पढ़ा तो लग रहा था कि ये बिल्कुल सब्जेक्ट अलग है. तो एक आपसे निवेदन है कि अपने टीचर से ज़रूर पूछ लें जो उनको ठीक लगता है और जो आपके साथ ही कंफर्टेबल हैं. मेरा सजेशन है कोई नए ऐप से अभी, क्योंकि एग्ज़ाम करीब हैं और अगले महीने सबके शुरू हो रहे हैं इसी महीने में, और इट विल बी नाइस टू deal with the material and the online collection of items which you already have, and where you feel there is a confusion, where you feel there is a clarification on certain subject matter. I have come to see so many thousands of children जो टीचर इतने accessible हैं, counselors accessible हैं. आप उनसे ज़रूर चर्चा करिए. Sir, I think a teacher has asked us this question, Vinay from Manesar. He says children often gets involved in unnecessary internet games and chatting which leads to exploitation among them. Yes. Apart from this, children themselves never address such cases of abuses, etc. What can be done for same? He's teaching since past 10 years. Online education is new to teachers as well. True. And children and parents. So is there any platform which can provide guidelines regarding proper usage of internet education is what he wants to know. There's no doubt that internet sanity or internet habits and the healthy habits of internet, there's a lot of material available. CBSE also has circulars in this regard. From your school you can get it, or you can even write to NCPCR. They will be able to send it to you. The NCPCR website has got healthy cyber habits material available. But please remember one thing, the number of hours that we spend on the net, especially in the social media, and the compromise on basic
biological health like sleep, appetite, even basic exercise or movement is led to so many illnesses, including internet disorders, internet habitual disorders. So remember, how we use the internet and how we get guided to use the internet, it should not be left to only the people around us. You also take a judgment. If it is affecting you, kindly speak to your counselor, speak to your father and mother, and also teachers who are coming across this challenge with the students. Please guide them, please guide the parents how to monitor. There are so many millions and millions of parents waiting to listen to you from the school side. What kind of routine, what kind of a timetable the family can make so that healthy cyber habits are part of life. Otherwise, social media is so driving or driven that we don't realize when children have become already addicted to it. And sometimes that addiction can lead to violation, it can lead to cyber abuse, it has led to cyber bullying of severe nature also in many parts of the country. Children often hide it, they don't want to open up when they face such a thing. And also, after all, some degree of that cyber culture unfortunately has started giving validation to the emotion of young people, young children, Social adolescents, validation. social validation. And that's because I think they somewhere miss out on the real time validation, Divyaji. The real time interaction, the real time celebration of family life, और जिसको कहते हैं एक शाबाशी जो होती है, validation जो होता है, समर्थन जो होता है, if that can be worked upon by the school and the family, I'm sure the number of hours and the tendency towards addiction of cyber world will be much less in the times to come, and in maybe it will lead to more healthier lifestyle. बच्चे अपना स्वास्थ्यिक जीवन निभाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन उनको वो खुशियों वाला भी जीवन चाहिए आसपास जो केवल निगलेक्ट हो जाए और वो साइबर वर्ल्ड के शिकार हो जाएं, तब वो बहुत लेट हो जाता है. सो अपार्ट फ्रॉम द हेल्दी, create a happy world. That's what I'm saying. And that happy world is about people, not about the computers, not about the tablets and the mobile phones. So basically there needs to be a bridge between the virtual world and the real world. That's the only answer. That's the only answer. Healthy virtual world comes only after a healthy real world. But if the healthy real world is being compromised in the place of healthy virtual world, we are going to have problems, we are going to have mental health conditions, we are going to have a very difficult world around us, which could be difficult in human behavior. So remember, we are all raising a new generation, and that generation needs to be not only happy and healthy, but also proud of being what they are tomorrow. If they are victims of cyber addiction, cyber bullying, I'm sure they are not a very healthy population then. So let us celebrate childhood. Let us celebrate the fact that they are the people whom we should be talking to, and the young ones will lead us to a much safer, healthier and happier world tomorrow. So sir, on this note, I think Prime Minister Modi also in his Pariksha Pe Charcha session 5th edition mentioned about, उन्होंने कहा कि आप reels देखते हो या read करते हो online. So basically how you choose your time online depends on us, right? So absolutely, Divyaji. Success is not about getting 100% marks or getting into the best college. Success is about being confident as a human being, upholding your self-esteem, being able to connect to the world around you, and also looking back to the schooling years and saying, wow, that was the happiness I lived through. I think that's what you're saying. और हमें वही दुनिया, वही देश और वही वातावरण बच्चों के लिए बनाना चाहिए, क्योंकि सब मिल के बना सकते हैं वो. Togetherness will create a celebration of the exams also. So on that note, we will conclude today's session with Jitendra sir. Thank you so much, sir. This was a wonderful session, and I'm sure students will not look at mental health as stigma anymore. Not at all. Not at all. No stigma about mental health. Celebrate mental health. Celebrate happiness. Thank you so much. This is Divya Singh Sharma signing off. Thank you.